Good afternoon, respected teachers, and thank you so much, sir, for giving me this opportunity to be here today and to explain my views regarding a topic which I found personally is very, very underrated, but we need to talk about it. Okay? So before that, I wanna ask from your side, what do you understand by the term health? Anyone from you? If they want to tell me what they understand by this term, please. What do you understand by health? Anyone? Teacher or anyone? Language में आप मुझे बता सकते हैं. Like आपकी क्या knowledge है about this word? किसी को तो कुछ पता होगा health के बारे में. It's a very basic topic. 10th class, anyone? No issue. So let me tell you what the health is. Health is a state of mind which includes your physical, your mental and your social well-being. कि किस तरीके से हमारी body physically, mentally and socially work कर रही है. That is the health. And हम अपनी day-to-day life में we took so many steps to be healthy and to be fit, right? Isn't we? Right? We take medicines. We go to gym nowadays. There's a trend of going to gym. Even teenagers who are not 18 plus, they are going to gym to have a good health and to have a body, right? But because it is important, we know that being healthy is very much important to live on this planet. But ever we think about our mental health? क्या हम कभी अपनी mental health के बारे में सोचते हैं? We always think about how we are appearing to the person. कि हम appearance में लोगों को कैसे दिख रहे हैं, right? कि हमारी muscles होनी चाहिए, हमारी body अच्छी होनी चाहिए, and हम बहुत fit लगने चाहिए. But हम कभी भी अपनी mind के बारे में, अपनी mental health के बारे में नहीं सोचते. क्यों नहीं सोचते? क्योंकि इंडिया में to talk about mental health openly is considered as a sin. हम इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करना चाहते. बट इट इज एज इम्पॉर्टेंट जस्ट एज द फिजिकल हेल्थ. इंडिया में अगर कोई इंसान बोलता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल इशू, वी कंसीडर दैट पर्सन एज अ मैड. हम उसे पागल समझते हैं. बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट आवर ब्रेन इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ अवर बॉडी, एंड इफ आवर ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन को इक्वल परफॉर्म नहीं कर पाएगी, राइट? ये बात से आप अग्री करते हैं? तो फिर हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों ध्यान नहीं देते? एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू केयर अबाउट आवर मेंटल हेल्थ? कि हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है, हम लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं. बेसिकली मेंटल हेल्थ रेफर इसको करती है कि किस तरीके से हम लोगों के साथ रिलेट करते हैं, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी फील, हाउ वी एक्ट विद अदर्स. बेसिकली मेंटल हेल्थ जो है उसको इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इफ योर मेंटल हेल्थ इज हेल्दी, इफ अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, यू कैन डू एनीथिंग जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक. अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं तो देयर विल बी सो मैनी प्रॉब्लम्स इन योर डे टू डे लाइफ. There will be so many hurdles in your day-to-day life. And with this, mental health, a proper mental health helps you to have a better lifestyle. जितनी अच्छी आपकी mental health होगी, आप उतनी ही अच्छी living से अच्छे से रह पाएंगे, उतना आपका अच्छा lifestyle होगा. इसीलिए mental health is a very important part. But आजकल इंडिया में भी काफ़ी सारे इस तरीके की mental related problems सामने आ रही हैं. क्योंकि पहले हम इस बारे में बात नहीं करते थे, राइट? हम इस बारे में बात ही नहीं करते थे कि अगर कोई पर्सन, इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, वी यूज्ड टू हाइड इट, वी यूज्ड टू इग्नोर इट. बट नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर, पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट द मेंटल अवेयरनेस. दैट इज व्हाई आई एम हियर टू टेल यू अबाउट, so that you don't ever feel any kind of trouble. If you ever feel, unfortunately, if you don't have this time, so you have proper knowledge and you know like how you can escape from it, how can you avoid that kind of situation. So have you ever heard the term mental health? Or I want to know from your side. Like I have already told you what is mental health, but I want to know from your side.
Yes, please. मेंटल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस है, अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस है, उसे हम कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, चाहे उसे हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो हमारे पर निर्भर होता है। Absolutely right. He said the perfect thing that किस तरीके से हम स्ट्रेस के साथ कोप अप कर रहे हैं, that is our mental health. And now I will tell you about the mental disorders. जिस तरीके से जब अगर हम अपनी फिजिकली अपने आप पर ध्यान नहीं रखते, we face physical disorders, we get fever, we feel cold, right? There are so many things. And the same as we have mental disorders. Mental disorder is a very, very serious condition where your mind does not know how to compete with the day-to-day hurdles, and you will face trouble in all the activities you do in your life. This is a poster about mental health awareness. You will see some words that are highlighted like depression, anxiety, suicide, trauma, and many more. These are the basic mental disorders which are seen in our country. And if I tell you context, so there are 54% of students in India who are suffering from mental disorders, but no one wants to talk about it. 54%, it's a very big ratio. 54% students India में, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, मेंटल डिसऑर्डर किसी ना किसी तरीके से फेस कर रहे हैं. एंड इट्स अ बेसिक थिंग, पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ से किस तरीके से एस्केप करेंगे, हम कैसे इस चीज़ से बचेंगे. एंड द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इज डिप्रेशन. आप सबने सुना होगा ये वर्ड, सुना होगा डिप्रेशन के बारे में. इट्स अ मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, राइट. इंडिया में जो डिप्रेशन है ये कॉमन होता है, बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड डिप्रेशन इज वेरी सीरियस. इट कैन कॉज यू द फीलिंग ऑफ सैडनेस ऑल द टाइम. यू विल हैव मूड स्विंग्स. एंड यू विल नो व्हाट मूड स्विंग्स? या प्लीज. The sudden changes of expression is called mood swing. Exactly. The sudden changes of expressions and mood are mood swings. कि आपका किस तरीके से पीरियड के टाइम से जब हमारा जल्दी जल्दी मूड चेंज होता है, बहुत क्विक चेंज होता है, दैट इज द मूड स्विंग्स. इफ अ पर्सन इज डिप्रेस्ड, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, he will have mood swing, he or she will have this sadness moment all the time, and the loss of interest in those activities which you once enjoyed. ऐसी एक्टिविटीज जिसे आपको करना बहुत पसंद होगा, बट अब आपका उस पर इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है. एंड हमने देखा होगा क्लास में देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि स्टडीज़ में बहुत होता है, बट काफ़ी बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट स्टडी में से या किसी और एक्टिविटीज़ में से ख़त्म होता जाता है धीरे धीरे. टीचर्स इस बात के लिए एग्री करेंगी कि कुछ बच्चे जो बहुत ही अच्छे होते हैं, बाय द टाइम उनका इंटरेस्ट या उनका फोकस स्टडी में से ख़त्म होता जाता है. रीज़न क्या है? रीज़न यही रहता है कि पीछे कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, कि बच्चा स्ट्रेसफुल है या नहीं. इसी वजह से इंडिया में डिप्रेशन का जो रेट है वो बहुत हाई है. सेकेंड मेंटल डिसऑर्डर इज द एंजाइटी. एंजाइटी एक ऐसा डिसऑर्डर है वेयर इज द सडन चेंज इन योर मूड, जस्ट लाइक अ मूड स्विंग, बट अ एपिसोड of a panic attacks, anxiety attacks, when you will feel trembling, your hands or your legs will be shake, and you will not able to understand like what's happening in my body right now. Anxiety attacks बहुत common होते हैं, and हमें ये काफ़ी बार जैसे I have experienced the anxiety attack in my life. Like I was doing my exam paper, I was sitting in the examination hall, and suddenly I was running late of time. कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, बट आई हैव लेफ्ट 5 क्वेश्चंस. मेरे 5 क्वेश्चंस बचे थे, लॉन्ग क्वेश्चंस, और सिर्फ टाइम मेरे पास लास्ट के 15 मिनट्स बचे थे. और मेरे लिए वो एग्जाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड दैट टाइम आई एक्सपीरियंस द एंजाइटी. उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एंजाइटी को एक्सपीरियंस किया. मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी, मेरे हैंड्स शेक कर रहे थे, मैं पेन को होल्ड नहीं कर पा रही थी. और मुझे जबकि वो उस समय इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो मुझे तब भी आई वॉज फीलिंग टू मच कोल्ड. मेरी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा था. उस टाइम पे मैंने समझा कि हाँ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी तब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. समहाउ मैंने अपना एग्जाम फिनिश किया. घर पे आके जब मैंने अपने उन सिम्टम्स को जो मैं उस समय फील कर रही थी गूगल सर्च किया, तब मुझे एंजाइटी के बारे में पता चला. दैट टाइम आई अंडरस्टैंड कि
सिचुएशंस आपको कभी भी फेस करनी चाहिए। और वो मुझे एंजाइटी अटैक्स क्यों आए? क्योंकि मुझे उस समय स्ट्रेस था, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि मैं अपना एग्जाम कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। That was I was having the anxiety attacks. The third one is post-traumatic disorder. Post-traumatic disorder refers to कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपने अपनी अर्ली लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो। अभी से पहले आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने विटनेस किया हो, बहुत टेरिफाइंग विटनेस, एंड जब भी आप उस इवेंट के बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा घबरा जाएंगे। If I take example of my mother, she fell from the bicycle when she was a child. इस वजह से उन्हें बाइसाइकिल्स का हो गया है। She feels very much scared whenever she thinks about a bicycle, क्योंकि उन्हें उस बात का ट्रॉमा हो गया कि that I fell from the bicycle, I had the injuries in my knees, in my ankles. This is a post-traumatic disorders, कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ अर्ली लाइफ में हुआ हो, and whenever you think about it, you feel scared, you feel suddenly panic. The fourth one is eating disorder. Eating disorder mostly girls में and women face करती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो गुड मील बैलेंस होता है वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। बेसिकली डिस्टर्बेंस इन ईटिंग, कि आप किस तरीके से आप नो मैटर हाउ मच फूड यू आर कंज्यूमिंग इन योर डे टू डे लाइफ, इफ यू वंस गॉट द ईटिंग डिसऑर्डर, देयर वुड बी सो मच डिफिकल्ट फॉर यू टू लूज और टू गेन द गेन। दो टाइप के मेन ईटिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, लाइक बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया। बुलिमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे नो मैटर आप कितना न्यूट्रिशन एक डे में कंज्यूम कर रहे हैं, यू विल लूज अ लॉट ऑफ वेट। अगर किसी को, मोस्टली सेंटा गर्ल्स में, अगर किसी गर्ल को बुलिमिया से वो अगर सफ़र कर रही है तो 1 मंथ में वो दे कैन लूज अ लॉट ऑफ वेट। एंड बुलिमिया एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी बार जो भी सफ़र कर रहा होता है वो कुछ खाने का मन नहीं करता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। एनोरेक्सिया में इसका अपोजिट होता है कि अगर आप डे में एक बार भी कुछ नहीं खा रहे हैं तब भी यू विल योर गेन द वेट, आपका वेट जो है तब भी बढ़ेगा। दीज आर द ईटिंग डिसऑर्डर्स। एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स आर काइंड ऑफ सिमिलर टू एंजाइटी अटैक्स, पर पैनिक अटैक्स में जो घबराहट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक इंसान ना चल पाता ना बोल पाता, एंड पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा वर्स होते हैं। एंड ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यू ऑल आर टीनेजर्स, राइट? अभी आपको स्टडी करनी है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। सो आपकी जो सिचुएशन है, माइंड सिचुएशन, आप अभी से इतने कैपेबल बने दैट यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज लिविंग विद द मेंटल डिसऑर्डर इज जस्ट लाइक लिविंग लाइक अ हेल। सच्ची मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ही वर्स होते हैं। एक बार हम फिजिकल, जब हमें कोई डिसऑर्डर होते हैं हम उसके मेडिसिन लेते हैं और हमारी पूरी फैमिली हमारी टेक केयर करती है, बट मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जैसे मैंने कहा लोग बात ही नहीं करना चाहते। अगर मैं बताऊँ आपको क्या रीजंस रहते हैं, दैट व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को कैसे रीजंस जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बीइंग अ स्टूडेंट। मैं बात करूँगी एकेडमिक्स। स्टूडेंट्स में जो मोस्ट कॉमन रीज़न रहता है वो होता है एकेडमिक्स, एंड इसमें स्कूल्स की गलती नहीं होती, गलती हमारी ही होती है, दैट वी डिड नॉट मैनेज आवर शेड्यूल प्रॉपर्ली। हर स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइक मेरे से भी काफ़ी बार होता है कि मैं अपना जितना भी शेड्यूल है उससे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाती है। लास्ट मिनट में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अभी ये चैप्टर भी करना है, ये कंसेप्ट भी करना है, उस टाइम पे मुझे भी स्ट्रेस होता है, मैं अपनी फैमिली को भी स्ट्रेस देती हूँ कि मेरा अभी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, राइट? तो अकेडमिक से रीज़न रहता है। तो मोरल यही है कि अपने जितना भी आपका शेड्यूल है, अपने शेड्यूल को मैनेज कीजिए, बिकॉज अकेडमिक्स, देखो सबको, एवरीवन इज रनिंग इन अ रेस ऑफ सक्सेस। हम सब सक्सेस के लिए भाग रहे हैं, राइट? पर अगर हम अभी से थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेंगे तो वी विल इजीली गेट द सक्सेस एंड विद अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ। कि क्या फ़ायदा, आपके पास सक्सेस तो है पर आप उसको इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो, इसका क्या फ़ायदा? द सेकेंड फैक्टर is the poverty. Unfortunately, I know there are so many students who live in an environment with poverty. And इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना इसमें आपके पेरेंट्स की गलती है। इसमें कहीं ना कहीं कंट्री की भी थोड़ा मिस्टेक है कि लोगों का जो इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल है। जो मनी का कंसंट्रेशन है वो कुछ लोगों के हाथ में है, और जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो इसके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसी वजह
एंड मास्क वैसे तो हमने कोविड टाइम से लगाने शुरू करते हैं, राइट? एंड दैट टाइम वी यूज टू वियर मास्क सो दैट वी कैन escape from the coronavirus. But now, boys, especially I'm talking about boys, they are wearing masks to hide their mustache. Mustache आप समझते हैं? मूछे. मेरी भी क्लास में there are so many students क्योंकि कोविड के टाइम पे there were so many changes physically in our body. And कुछ बच्चे अपने उन changes को लेके बहुत insecure हो जाते हैं. And that is why they wear mustache so that they can hide it. Right? मास्क पहनते हैं ताकि कोई उसको देख ना पाए. And there are some students who are very much chill, who don't wear and who don't care about what other thinks. So that is a thing, the discrimination, कि हम कहीं ना कहीं अपने साथ ही भेदभाव करते हैं. And other is जो discrimination, gender discrimination तो कंट्री में नहीं है पर कुछ like remote areas में, but mostly नहीं है. तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी अलग अलग बेसिस पे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं और डिसऑर्डर्स को के साथ सफ़र करते हैं. एंड द फिफ्थ वन इज़ आवर इन्वायरमेंट, कि किस तरीके के इन्वायरमेंट पे रहते हैं. हिंदी में एक कहावत है कि बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, राइट? क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जिस तरीके के इन्वायरमेंट में रहेंगे हमारा मूड, हमारा बिहेवियर उसी से अफेक्ट होगा. इसीलिए एक ऐसे इन्वायरमेंट को चूज कीजिए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ पे कोई असर ना पड़े एंड आपकी इवन मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर हो, डिग्रेड ना हो, राइट? अपने बिहेवियर को सुधारिए. अब मैं अगर एक बात करूँ कि बच्चे स्कूल में फाइट करते हैं, बच्चे लड़ाई करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारा, उस टाइम पे उनमें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, एड्रेनलिन होता है कि हम तो वही मारेंगे. बट बाद में वो उस टाइम पे इस बारे में नहीं सोचते कि क्या उनके ऊपर इफेक्ट होगा. एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? हम उस समय तो अपने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके कुछ भी गलत स्टेप ले लेते हैं, लेकिन बाद में जो उसका इफेक्ट हमारे पे, लाइक हमारे टीचर्स हमारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे, हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से सुनना पड़ेगा. क्या आपको चाहता अपने पेरेंट्स के आपके पेरेंट्स स्कूल में आए और वो आपकी वजह से एम्बैरेस्ड हो? उस टाइम पे आप पे स्ट्रेस होगा कि हाँ मैंने वो गलत स्टेप ले लिया, इसकी वजह से आज मेरे पेरेंट्स जो है सर झुका के बैठे. इसीलिए अपने बिहेवियर को सुधारिए. डोंट फाइट, डोंट अब्यूज ईच अदर. अब मैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस की बात करना चाहूँगी जिनको अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करेंगे, यू विल फाइंड द चेंज इन योर सेल्फ. आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, अपग्रेड होगी. फर्स्ट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन बहुत कॉमन है, हर कोई कहता है कि मेडिटेशन कीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ जो है अच्छी रहेगी. किसी भी फॉर्म में, अगर आपको जॉगिंग पसंद है आप जॉगिंग कीजिए, आपको मॉर्निंग वॉक करना पसंद है वो कीजिए. किसी भी फॉर्म में, इन एनी फॉर्म यू लाइक योर काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू, बिकॉज मेडिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ हैविंग द रिलैक्स्ड योर माइंड. हमारे ब्रेन जो है, क्योंकि हमारा ब्रेन मैंने जैसे कहा इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर. हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. एंड एवरी जो कितनी भी मशीन्स होंगे सबको रेस्ट चाहिए होता है वरना वो गर्म हो जाता है. सेम गोज टू विद आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स चाहिए होता है एंड मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू कीप रिलैक्स टू आवर ब्रेन्स. द सेकेंड वन इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप विच इज़ माई फेवरेट. ये नहीं है कि आप पूरे दिन सोते ही रहिए. टेक अराउंड, मोस्टली कहा जाता है 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ही बेनिफिशियल होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में. तो स्लीप को कभी भी अपने कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. अगर आपके एग्जाम्स हैं, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली 10th क्लास के भी आप एग्जाम्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आप लोगों को भी हो रहा होगा कि किस तरीके से हम इतना सब कुछ करेंगे. हमारे 2 months बाद फरवरी में बोर्ड्स हैं, क्या हमारी परसेंटेज आएगी. एंड रिलेटिव्स के भी कॉल आ रहे होंगे कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट? इस समय स्ट्रेस तो हो रहा होगा. मैंने भी अभी अपने रिपोर्ट्स दिए, मुझे भी बहुत स्ट्रेस था. तो वही है कि आप अपनी पढ़ाई तो कीजिए बट डोंट सेक्रीफाइस योर स्लीप. ज़रूरी नहीं है आप थोड़ा सा अपना अमाउंट कम कर सकते हैं. 1 hour आप थोड़ा कम सोइए, मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए. आप अपने सेशंस में डिवाइड करिए अपने स्टडीज़ एंड बीच में 30 मिनट्स का आप एक इवनिंग में नैप ले सकते हैं. दैट इज नैप आर द वेरी बेस्ट. नैप से आप एकदम से जो ना रिलैक्स हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, योर कंप्लीट मूड चेंजेस. With this, take nutritious food लीजिए as much as you
अपने, जैसे मैं बोला, बिहेवियर को सुधारें। जितना बिहेवियर आपका वर्स होगा उतनी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो वर्स होगी। इसके साथ साथ ऐसे कभी भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में होने ना दीजिए, कभी भी कुछ ऐसा इवेंट अपनी लाइफ में ना अकर करने दें जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ तक, लाइफ लॉन्ग आपको इसके बारे में सोचना पड़े कि हाँ मेरे से बचपन में ऐसी गलती हो गई थी और ये मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है? नो, इंडिया में हर ईयर, इन इंडिया एवरी ईयर अराउंड 2 million cases of mental disorder are reported हर ईयर। एंड अगर वर्ल्ड की बात करूँ WHO की रिपोर्ट से तो दिखाया जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स आर द 4th किलर। वर्ल्ड में जितने भी डेथ रेट्स होते हैं उनमें से 4th नंबर पे हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आते हैं कि मेंटल हेल्थ की वजह से लोग, क्योंकि जब आपकी मेंटली आप ठीक नहीं होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, यू विल टेक रॉन्ग एक्शन। दैट इज व्हाई मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, कीप हेल्थ, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सफ़र कर रहे हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिस्टर ब्रदर कोई भी इस कंसर्न कर रहा हो। मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं कि हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, सडन रेटिंग इंक्रीजिंग, फीलिंग एक्सेसिव कोल्ड और विंटर hot, and with this trembling, shaking of heads and legs and so much. आप में से कुछ ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा पर आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया होगा, किया ज़रूर होगा और मैं इस पर 100% श्योर हूँ, हुआ होगा पर क्योंकि आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो आपने उसे इग्नोर कर दिया। पर अब क्योंकि नाउ यू आर अवेयर अबाउट दिस एंड नेवर यू विल फील दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ, you will be aware, yeah, I was aware about this and maybe I am suffering from any kind of issue. And see, the one day stress does not cause mental disorder. ये लोगों में बहुत बड़ी मिथ है कि कुछ लोग जो हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव शो करते हैं कि एक दिन के स्ट्रेस को वो डिप्रेशन बताते हैं कि दैट आई एम इन डिप्रेशन। स्ट्रेस जो होता है वो एक दिन के स्ट्रेस से डिप्रेशन नहीं होता। एक दिन का स्ट्रेस से आप सोचिए आपको फ़र्क दिखेगा। But if you are not taking care of your stress, you are not taking care of your mental health, that time you will feel any kind of mental disorder. I talk about only 5, but there are numerous. There are more than 100 mental disorders which are reported every year. So just take care of yourself and don't feel shy. लोग ना इंडिया में इस बात में क्योंकि ना बोलते नहीं है, like if they are suffering from something, they feel that if I tell about this thing to my parents or to my teachers, to my guardians, they will scold me. But see, don't shy. Mental health is considered as a human right. हर human का mental health पे right है. Everyone, सबको एक अच्छी mental health पे सबका right है and don't feel shy about it. If you are having something, just admit it. Tell it to anyone whom you feel trustful. जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, टेल इट अबाउट देमसेल्फ। ओके, अपने सभी सराउंडिंग्स पे ध्यान दीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए। ऐसी कभी कंडीशन अपनी लाइफ में मत आने दीजिए जिससे आपको मेंटल डिसऑर्डर्स फेस करने पड़े। एज आई सेड, मेंटल डिसऑर्डर्स आर वेरी मच फॉर सिचुएशन एंड अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, अगर आप मेंटली फिट नहीं होंगे, यू विल फेस न्यूमरस फिजिकल डिसऑर्डर्स जस्ट लाइक स्ट्रोक, हार्ट रिलेटेड डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज़। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें तभी फेस होती है जब हम मेंटली स्टेबल नहीं होते। हमने सुना है लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं व्हेन वी फील स्ट्रेस। जब हमें थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है तो ये बहुत कॉमन होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इसलिए ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आने दीजिए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है इम्पैक्ट कीजिए, राइट। एंड कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। इंडिया में ना साइकाइट्रिस्ट का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि साइकाइट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर होते हैं। हम ये समझते हैं कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो पागलों के डॉक्टर हैं, बट हम ये नहीं समझते कि पागल कुछ होता ही नहीं है। एवरीवन हू वी कंसीडर्ड अ मैड, देयर आर सम रीजन बिहाइंड लाइक व्हाट इज लाइक हाउ देयर ब्रेन इज फंक्शनिंग, राइट। ब्रेन है वो इट्स काइंड ऑफ मशीन, इट कैन फॉल। समटाइम्स हमारे ब्रेन भी गलती कर सकता है एंड अगर हमारा ब्रेन ही ठीक नहीं हुआ तो दैट टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए यू कैन कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं हमें थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। थेरेपी से हमारा ब्रेन बहुत रिलैक्स होता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी पेशेंट्स होते हैं दे कम्प्लीटली रिकवर्स एंड इन सम केसेस
I'm having this thing. Please check on me. I don't know what is going on with me. Please take me to a psychiatrist. And tell everything you are going on in your mind. Never keep your thoughts with you. Share your feelings. आपकी feelings जो भी हैं, आपको जो भी कुछ आपके thoughts आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई mental disorder face कर रहा होता है, that time you will have numerous negative thoughts. आपके दिमाग में बहुत thoughts आएंगे कि बहुत गलत आपके चीज़ें आएंगी कि हाँ मैं ये एक्शन कर सकता हूँ, but never took and never harm yourself. लोग सेल्फ हार्म पता है खुद को हार्म पहुँचा लेते हैं क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं होते. तो ऐसी कोई सिचुएशन मत आने दीजिए. अगर सेल्फ हार्म इज़ वेरी हैव हर्ट द सुसाइड इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं. कोटा राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे हर ईयर इतने स्टूडेंट्स IIT स्टूडेंट्स नीट स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. जबकि प्रेशर एवरी पेरेंट्स विल से यू टू स्टडी, बट प्रेशर आप अपनी वजह से अपने ऊपर करते हैं. आप अगर अपने आप को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे दैट टाइम यू विल फेस इट, एंड दैट इज़ वाई इतने स्टूडेंट्स हर ईयर जो है सुसाइड करते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ अगर ठीक होगी तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ. एवरीथिंग विल बी जस्ट लाइक पीस ऑफ केक एज आई से. एक्सप्रेस योर फीलिंग, डोंट कीप योर थॉट्स विद योर सेल्फ. मेक दिस मेंटल हेल्थ योर प्रायोरिटी. फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देना ही देना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. फिजिकल हेल्थ को ये नहीं कि सिर्फ आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, फूड कंज्यूम करना छोड़ दो. अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है बिकॉज दिस थिंग्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. फिजिकल एंड मेंटल बोथ थिंग्स आर इक्वल इम्पॉर्टेंट. पर हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं. दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है. वी हैव टू फोकस ऑन बोथ थिंग्स. वी हैव टू मेक मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर प्रायोरिटी. We have to make a society where everyone would be aware about the mental health, so no one would harm themselves. A person who is suffering from it and they don't know about it, tell it to your friends. Okay? अगर आपको कभी भी अपने friends में, अपने family में symptoms लगते हैं कि हाँ he is not talking to us, like ये पहले बहुत happy हुआ करता था पर अब आजकल ये बहुत ज़्यादा frustrated रहता है, irritated रहता है, and इसका अपनी activities में से interest जो है वो खत्म होता जा रहा है. Help कीजिए. हेल्प योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. उनसे आप उनको वॉक पे लेके जाइए. उन्हें आप यू कैन सी मूवीज, यू कैन लिसन सॉन्ग जिससे आपका ब्रेन जो है वो रिफ्रेश होएगा. बट कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करना. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहे हैं क्योंकि अभी आप इस एज में हैं दैट यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. स्ट्रगल के चक्कर में कभी आप लोगों की मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस ना हो. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट to learn about the mental health awareness. And anyone want to say anything? Like I want to know if anyone from you have ever faced this kind of symptoms in your life. Don't be shy as I say. If anyone, you are open to tell. Don't feel shy. मुझे पता है हुआ आप सबको होगा बट अभी आप सब ना as I say we are not open about it. आप सब सोचोगे कि नहीं टीचर सुन लेंगे, पेरेंट्स को पता चल जाएगा. Don't shy about this. होती है that this is a common thing, this is a basic thing everyone face in their life. Don't ever feel shy about your mental health. And mental health के cases सिर्फ इंडिया में नहीं all over the world. Half number of Americans का हम कितना Indians in Americans से बहुत inspired होते हैं. Half number of Americans जो होते हैं they are diagnosed with any kind of mental disorder once in their lifetime. But because they are aware about it, so they take therapies, their parents support them at the very early age of mental disorders and they recover with it. And now we see how much advanced the Americans are. Because India में हम इस बारे में सोचते ही नहीं है. हमारी कभी भी कंडीशन जो है अपने मेंटल पे ही ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बॉडी कैसे वर्क करेगी. So that is why make mental health your priority. लोगों को इसके बारे में अवेयर कराइए as much as you can. I took this initiative because I have felt this thing. Anxiety attack, panic attacks are very worst situation. आप सबको कभी ना कभी हुआ होगा, you have an experience there. That is why I want you all to know about it. That this is not a small thing. This is a very, very serious thing. And anyone can have this at any stage of life from childhood to adolescence
through adulthood. Every group of 8 people face mental disorders. And I hope you don't have any kind of, query about it. If you have, you can ask me. If you have any question like about mental health, I am open to it, I'll give. But don't keep anything in yourself. Your health is your priority. Your life is a priority for your parents, for your environment, for your community. So I think, so my fellow mates, let's take this initiative for making mental health an important topic and to make people aware about it, that mental health is not a joke. It is as important, it is at utmost importance, just like our physical health. Right? So I think this is too much for today. So thanks so much for this. I want to end the speech.